A very good morning to all my students. Welcome in my class. Today I am going to teach you the second chapter from your English grammar book, Nouns. To learn English, we need to know its grammar. That's why today I am going to tell you about the second chapter, Nouns of your English grammar, and English words in Hindi you can call it Sangya. So let's know what noun is called and what kind it is. Noun. What is a noun? Nouns are everywhere. In our writing, in our atmosphere, in our environment. But what are all the types of noun you come across and how do you use them? What is a noun? A noun is a word that names something, such as a person, place, things, or idea. In a sentence, noun can play the role of subject, direct object, indirect object, some complements, and some object complements. What is a noun? So, here we discuss about the definition of noun. A noun names people, animals, places, things, events, qualities, and states. Nouns can be simple to understand because any name of a person, a place, an animal, or a thing is a noun. So, nouns are everywhere. If we talk about in a simple language, so we can say that very frequently that nouns are everywhere in our writing and also in our atmosphere. But what are all the types of noun? That is a main point. So let's start. There are 5 types of noun. First is a proper noun, second common nouns, third collective nouns, fourth abstract nouns, and material nouns. So these 5 categories of nouns. What is an example of a noun? A noun is a word that describes a person, place, things, or an idea. Examples of a noun include names, locations, object in a physical world or an object and a concept that do not exist in the physical world. For the example, a dream or a theory. Noun एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को या किसी आइडिया को डिस्क्राइब करता है. जैसे नाउन जो है वो इंक्लूड होता है, किस में इंक्लूड होता है? किसी ना किसी पर्सन के नेम में, कोई लोकेशन में, किसी ऑब्जेक्ट में या किसी फिजिकल वर्ड में. और ऑब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड. फॉर द एग्जाम्पल, अ ड्रीम और अ थ्योरी. ऑलराइट. अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट फंक्शन. नाउन एक ऐसा शब्द है जो फंक्शन है जिसका एज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट such as a living creatures, places, actions, qualities, states of existence or an idea. However, noun is not a semantic category, so it cannot be characterized in terms of its meaning. Actually, a noun is a word that names something such as a person, place, things, or idea. In a sentence, noun can play the main role, just like the subject, direct object, indirect objects, some complements or object complements. Okay. Noun from a large proportions of the English vocabulary. Actually noun form जो है वो एक large proportion है, यानी एक large ratio है English vocabulary का. एंड दे कम इन अ वाइड वेराइटी ऑफ टाइप्स. और ये अपने आप में एक बहुत ही वाइड मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से सारी वेराइटीज़ को कंटेन किए होता है. नाउन कैन अ नेम, नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है. एंड नाउन कैन अ प्लेस, नाउन कैन ऑल्सो नेम अ प्लेस, किसी प्लेस का नाम हो सकता है. नाउन कैन ऑल्सो नेम अ थिंग. नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है. ऑल्दो समटाइम्स दे माइट बी intelligible things just like the concept, activities, processes. Some might even be the imaginary things. So everything is a noun. Okay.
what is a proper noun? Actually, here we discuss about the categories of noun. There are 5 categories of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and material noun. So now I want to focus on this type of noun that's we call the proper noun. So what is proper noun? Proper noun. A definition: noun names a specific person, place, thing or idea. Proper nouns are the capitalized. जो प्रॉपर नाउन है वो किसी स्पेसिफिक यानी किसी स्पेशल पर्सन का कोई स्पेशल नेम है, किसी प्लेस का नाम है, कोई थिंग है या कोई आइडिया है, दैट्स वी कॉल द प्रॉपर नाउन. ओके, जैसे मिसेस एल्टरमट एंड मिलिंग में मिडिल स्कूल एंड द डिट्रॉगेट टाइगर्स या टाइगर्स हिल्स, या किसी भी चीज़ का नाम, जैसे कि किसी सिटी का नाम हो गया, तो जिसका नाम दूसरा नहीं है, दैट इज़ अ स्पेसिफिक नेम. किसी को कुछ नेम दिया जाता है जो जिसके नाम से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो वो हमारी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का कोई स्पेसिफिक नेम हो. स्पेशल नेम जस्ट लाइक द प्रॉपर नाउन, जैसे किसी पीपल का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी पेट का नाम हो, डेज का नाम हो, मंथ्स का नाम हो. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डेज इन अ वीक एंड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मंथ इन अ ईयर. ऑर्गेनाइजेशंस है या किसी कंपनी का नाम है, किसी फैक्ट्री का नाम है, तो वो सब हमारे किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज दीज आर दीज टाइप्स ऑफ द कैटेगरीज आर इंक्लूड द स्पेशल एंड स्पेसिफिक नेम्स इन इटसेल्फ. They live in Mumbai. So a special name for the city because Mumbai is the city. But they live in a Mumbai. उस सिटी का नाम क्या है? मुंबई है. मुंबई है वो उस सिटी का नाम है. तो स्पेशल नेम फॉर द सिटी, उस सिटी का स्पेशलिटी क्या है कि उस सिटी का नाम मुंबई है. सो दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन. His dog's name is a Pluto. Specific name for the dog. Dog is a pet. And his pets is dog. So what's the name of the pet? Pluto. So special name for the dog is a Pluto. So here the specialty of the proper noun is special name for the dog. सो अभी मैंने डिस्कस किया कि किसी भी पैट का नाम हो या किसी पीपल का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, उसका स्पेशल नेम, उसका स्पेसिफिक नेम अगर है तो वो आपकी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा. अगर आपका जेंडर है तो जेंडर एक कॉमन होता है, ये प्रॉपर में नहीं आता. तो लेकिन अगर उस जेंडर का नाम है, अगर किसी भी लिविंग क्रिएचर्स का कोई नाम है या किसी मंथ का, किसी आइडिया, अगर किसी चीज़ का कोई नाम, स्पेसिफिक नेम है जिसके नेम के थ्रू आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, दैट वी काउंट इन अ प्रॉपर नाउन. ओके, व्हाट इज़ अ कॉमन नाउन? अभी हमने प्रॉपर नाउन को डिस्कस किया, अब हम कॉमन नाउन को डिस्कस करेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंसेस हैं. नाउ कॉमन नाउन, कॉमन आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा. कॉमन को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है सामान्य, एक कॉमन सी चीज़ है जो हर एक के साथ है. सो अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो या किसी आइडिया का नाम हो. कॉमन नाउन्स आर नॉट द कैपिटलाइज्ड, वो उसको कैपिटलाइज्ड नहीं करते हैं, मतलब उसको कोई नेम नहीं देते हैं, उसको कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती है. तो वो एक कॉमन कैटेगरीज में आते हैं, जस्ट लाइक द गर्ल, स्कूल, टीम, हैप्पीनेस. कोई भी गर्ल हो सकती है बिकॉज गर्ल इज़ अ जेंडर. स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है. टीम, कोई भी टीम हो सकती है. कोई भी किसी तरीके की भी कोई हैप्पीनेस हो सकती है. तो हेयर वी आर नॉट डिस्कस ऑन अ फोकस अबाउट द causes of the happiness, that what's the source of the happiness. तो जो भी happiness है उसका कारण हमें नहीं पता है, बट happiness है, तो happiness is just like the feeling. तो जो भी कॉमन चीज़ है वो हमारी कॉमन नाउन में आएगी. लेकिन जब किसी चीज़ को नाम दे दिया जाता है, उसको स्पेसिफिक नेम से एड्रेस किया जाता है, तब वो हमारी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगी. लेकिन अगर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी प्लेस को कोई नाम नहीं देते हैं, उसको एक कॉमन तरीके से बुलाते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सिटी, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ गर्ल्स इन आवर कंट्री एंड मैनी टाइप्स ऑफ टीम इन आवर कंट्री.
तो इंडिया की टीम है या पाकिस्तान टीम है या जिम्बाब्वे टीम है या वेस्ट इंडीज़ है, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया गया है कि कौन सी टीम है, ठीक है। तो ये कॉमन है, कॉमन बात है कि टीम है, तो टीम मतलब इट्स अ कलेक्शन ऑफ द पीपल, सो ये टीम है। नाउ जनरल नेम, जैसे किसी पर्सन का जनरल नेम हो जाता है तो वो हमारे कॉमन जो है जनरल नेम मीन्स अ पर्सन, कि इसका कोई जनरल नेम नहीं है, ये एक पर्सन है। तो पर्सन है, he has no any specific name, he has no any specific identification। तो एक मैन है, एक पर्सन है, तो ये हमारा कॉमन में आ जाएगा। जनरल नेम जस्ट कॉमन नेम, जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो एनिमल कोई भी हो सकता है, थिंग कोई भी हो सकती है, प्लेस कहीं भी कोई भी प्लेस हो सकता है, और पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है। तो यहाँ भी आपको कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं दिया जा रहा है, ध्यान रखिए। स्पेसिफिक नेम जिसमें होता है, जस्ट लाइक द सीता, मीना, रीता, अरुण और गौरव, ये जितने नेम हैं किसी जेंडर के, वो नेम जो है वो हमारे प्रॉपर नेम नाउन में आते हैं। और अगर उनका नेम नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन का पॉइंट नहीं है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि व्हाट्स द नेम, व्हाट्स द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन और थिंग्स और प्लेसेस, तो वो आपके कॉमन नाउन में आएंगे। ही इज़ अ क्लाउन। सो जो क्लाउन है ये आपका, आप इसको क्लोन भी कह सकते हैं, क्लाउन भी कह सकते हो, मॉडर्न इंग्लिश में इसको हम लोग क्लाउन भी बुलाते हैं, एड्रेस करते हैं। सो ही इज़ अ क्लोन और अ क्लाउन। सो जनरल नेम फॉर द पर्सन, जो ये एक पर्सन का नाम है, एक जनरल नेम है किसी पर्सन का। दे लिव इन अ सिटी, सो जनरल नेम फॉर अ प्लेस, किसी सिटी का, कोई भी सिटी है, एक जनरल नेम है किसी भी प्लेस का कि ये सिटी है, बट उस सिटी का नाम क्या है ये हमें नहीं पता है, तो ये भी हमारे कॉमन नाउन में आएगी। Now we discuss about the collective noun. What is a collective noun? A collective noun is a word used to name a group of a people, animals or thing. Collective name से ही समझ में आ रहा होगा, इट्स मीन अ कलेक्शन। कलेक्शन मतलब दो से अधिक लोगों का कलेक्शन, यानी ग्रुप ऑफ अ पर्सन एंड ग्रुप ऑफ एनी एनिमल, ग्रुप ऑफ अ थिंग्स। सो दो चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों का जब कलेक्शन होता है तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। सो अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ों को कलेक्टिव नाउन हम उन लोगों को कहते हैं जो किसी ना किसी कलेक्शन में आते हैं। जस्ट लाइक द नेम ऑफ अ ग्रुप, किसी नेम अ ग्रुप, किसी ग्रुप का नाम हो गया, किसी पीपल के का नाम हो गया, यानी कि नेम अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, यानी उन लोगों के ग्रुप का नाम क्या है। तो एक स्पेसिफिक नेम अगर दिया गया है, कलेक्शन है पूरा, तो एनिमल्स हैं तो एनिमल्स का भी कलेक्शन है, या किसी थिंग्स का कलेक्शन है, तो वो हमारे कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएंगे। कलेक्टिव नाउन जैसे अ हर्ड ऑफ काउस, हर्ड मतलब झुंड, तो गायों का झुंड, तो ये भी एक से अधिक गाय हैं, तो इट्स मीन द कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर। अ फ्लॉक ऑफ द बर्ड्स मतलब जो बर्ड्स हैं उनका ग्रुप, तो उनको बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। अ स्वैम ऑफ द फ्लाइज, जो फ्लाइज हैं उनका झुंड जो है, वो जो किसी भी चीज़ पे बैठ रही हैं, वो एक झुंड के साथ बैठ रही हैं, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, स्वैम, मतलब ये भी आपका कलेक्टिव नाउन में आता है। तो एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक लोगों का या चीज़ों का या किसी भी पेट्स का या किसी भी एनिमल का कोई झुंड होता है, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। और कलेक्टिव नाउन में एक चीज़ और होती है कि हम उसे काउंट कर सकते हैं, मतलब फिंगर पे उसे काउंट कर सकते हैं, तो ये जो है वो हमारी काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में भी आते हैं, जो कलेक्टिव नाउन है। नाउ इन अनदर side we can discuss about the collective noun's speciality, that a collective noun is a singular in a form even though its name anything which is two or a more than a two। कलेक्टिव नाउन होते हैं वो एक सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इवन जबकि उनमें क्या होता है, उसको हम किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन्स का जो झुंड होता है वो दो या दो से अधिक या उनसे भी अधिक लोगों का ग्रुप होता है, उनके कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में लाते हैं। और फिर हम उसकी जो रिकॉग्नाइजेशन, जो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको हम उस पर्टिकुलर पर्सन से नहीं करते हैं, वो पूरे ग्रुप को हम एक नाम दे देते हैं। जैसे काउस हो गया, तो हमने पर्टिकुलर किसी काउ की बात नहीं की, हमने हर्ड ऑफ काउस की बात की, है ना, तो गायों के झुंड की बात की, तो उस पूरे ग्रुप को कोई ना कोई नाम दे दिया, लेकिन उस ग्रुप में जो कैटेगरीज हैं वो आपकी जो है वो टू और मोर देन टू पर्सनैलिटी का उसमें कंटेन है, यानी इंक्लूड है उस ग्रुप में दो या दो से अधिक जो कैटेगरीज हैं वो उसमें इंक्लूड हैं।
नाउ मटीरियल नाउन भी आपको नेम से ही समझ में आ रहा है। मटीरियल मतलब कोई भी पदार्थ। तो मटीरियल नाउन्स में मतलब कि कोई ना कोई पदार्थ हो, खाने वाला हो नहीं है, बट कोई एक मटीरियल है, कोई सॉलिड चीज़ है जिसको जिसको हम टच कर सकते हैं। ओके, तो वो हमारी मटीरियल नाउन की कैटेगरीज में आती हैं। मटीरियल नाउन आर द नेम्स ऑफ द मटीरियल। मटीरियल नाउन जो है वो मटीरियल के नेम्स जो होते हैं उनके थ्रू, जैसे कि ऑफ द सबस्टोन्स आउट ऑफ द विच थिंग्स आर मेड, मतलब वो किस चीज़ से बनती है। तो वो जो चीज़ें जिससे कोई किसी धातु से कोई चीज़ बनती है तो उस धातु का नाम जो है वो मटेरियल है। उससे निर्मित जो चीज़ें हैं वो थिंग्स में आ जाती हैं। तो मटेरियल नाउन्स में मतलब वो मटेरियल जिसके थ्रू किसी चीज़ का निर्माण होता है, वो हमारी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती हैं। जैसे मटेरियल नाउन आर द नेम ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल का नाम है, और अ सब्सटेंस उस धातु का नाम है, आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे किसी ना किसी चीज़ का निर्माण होता है या किसी ना किसी मटेरियल का क्रिएशन होता है, वो हमारी मटेरियल नाउन में आती हैं। जैसे गोल्ड, सोना, सोने से हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, आयरन से हम बहुत सारे एल्यूमिनेशंस को क्रिएट करते हैं। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट्स जिनको हम यूज़ करते हैं। सिल्वर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ तो यूटेंसिल्स होते हैं, सिल्वर ज्वेलरीज भी होती हैं। तो सिल्वर ये भी एक मटेरियल है, तो इसके थ्रू बहुत सी चीज़ें बनती हैं, तो दैट इज़ अ मटेरियल। मटेरियल नाउन्स आर अ नेम गिवन टू द रॉ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। एक्चुअली मटेरियल जो है वो उन चीज़ों को दिया गया है जो रॉ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो जिनका एक साकार रूप नहीं दिया होता है, एक मटेरियल होता है। ओके, एक मतलब कि एक रॉ मटेरियल होता है, उसको जलाकर, उसको पिघलाकर, उसको मेल्ट करके उसको अच्छे से डिज़ाइन या उसको शेप दे देते हैं तो वो कोई चीज़ बनती है। लेकिन किसी चीज़ का निर्माण किससे होता है? मटेरियल से होता है। और मटेरियल का खुद का कोई मतलब कोई शेप नहीं होता है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, लेकिन थिंग्स का जो एग्जिस्टेंस होता है वो आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर गोल्ड नहीं होगा तो आप ऑर्नामेंट्स नहीं बना पाओगे, सिल्वर नहीं होगा तो आप यूटेंसिल्स कैसे क्रिएट करोगे चांदी के बर्तन को, आयरन नहीं होगा तो आप इक्विपमेंट्स और इल्यूमिनेशंस कैसे क्रिएट करोगे। तो मटेरियल होना ज़रूरी है किसी थिंग्स को एक ऑब्जेक्ट देने के लिए, किसी भी चीज़ को एक ऑब्जेक्ट तरीके से, या उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, या उसको सॉलिड एक शेप देने के लिए हमको मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट और थिंग्स टोटली डिपेंड ऑन द मटेरियल। ओके, सो मटेरियल नाउन का अपना कोई शेप नहीं होता है, ये एक रॉ एलिमेंट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं विच एग्जिस्ट इन नेचर और क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जो वास्तविकता में प्रकृति पर निर्भर होते हैं और मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। तो मटेरियल नाउन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनती हैं। तो ह्यूमन, क्रिएटेड बाय ह्यूमन यूजिंग रॉ मटेरियल, तो उन्हें जो ह्यूमन होता है वो उन रॉ मटेरियल को यानी कच्चे खाद्य पदार्थों को यूज़ करता है और उसको शेप देता है, उसको बनाता है, एक यूजफुल थिंग्स बनाता है उस मटेरियल से। दैट इज़ मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ मटेरियल, किसी मटेरियल का नाम हमारा मटेरियल नाउन है। और एनी सब्सटेंस या कोई भी धातु है आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे किसी चीज़ का निर्माण किया जा सके, वो हमारा मटेरियल नाउन में आता है। दे आर यूजुअली अनकाउंटेबल, और मटेरियल जो नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम फिंगर में काउंट नहीं कर सकते, उनका मेजरमेंट हम किसी ग्राम में या केजी में या इस तरीके से हम करते हैं, बट फिंगर में काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो जिनको मेज़र किया जाए वो हमारे हैं, वो काउंटेबल नाउन में नहीं आते हैं, बट जिनको काउंट किया जाए इन अ फिंगर वो हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। तो जो मटेरियल नाउन है वो हमारा काउंटेबल नाउन नहीं है। दे आर यूजुअली द अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल सिल्वर, आयरन, वूल, हनी, लेदर, कॉटन, रबर, टी, सीमेंट, बटर, ईटीसी। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको मेजर कर सकते हैं। सो मटेरियल नाउन आर द अनकाउंटेबल एंड आर फाउंड इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। कॉन्क्रीट फॉर्म वो होते हैं जैसे कि जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन में यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाया गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी मैं आगे बताऊँगी आपको, जिसको हम छू नहीं सकते, ओनली वी कैन जस्ट लाइक द फील, उसको हम फील कर सकते हैं, वो एक हैप्पीनेस है, वो एक फीलिंग है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते।
तो मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल एंड फाउंड इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। जैसे मटेरियल नाउन क्या है, किसी चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, छू सकते हैं, और हम उसको टेस्ट के थ्रू उसका टेस्ट भी ले सकते हैं अपने टंग के थ्रू। तो वो हमारी सारी चीज़ें मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती हैं। नाउ दिस इज़ अ लास्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है कि जिसमें कोई क्वालिटी इंक्लूड हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सारी आपकी क्वालिटीज़ आएंगी, सारी गुड और बैड हैबिट्स आएंगी, वो सारी इंक्लूड होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और वी कांट थिंक, वी कांट सी these टाइप्स ऑफ द नाउन। Abstract nouns are a word that name ideas, feelings, experience, qualities and concept। तो जो abstract noun है वो ऐसे शब्दों का समूह इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं जिसका कोई दैट नेम आइडियाज़, जिसमें जो कोई आइडिया होता है, कोई थॉट होता है, या कोई फीलिंग्स होती है, कोई भाव आता है किसी के मन में, किसी को कोई एक्सपीरियंस मिलता है किसी चीज़ से, या किसी के अंदर कोई क्वालिटी डिसक्वालिटी, बोथ आर इंक्लूड इन दिस टाइप्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड कोई कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपोजिट ऑफ द कॉन्क्रीट नाउन कैन ओनली बाई थॉट और फेल्ट। तो ये जो है इसको केवल सोचा जा सकता है और इसको महसूस किया जा सकता है। वी कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इसको देख नहीं सकते और इसको फील नहीं कर सकते। किसी के अंदर ईमानदारी है तो वे ईमानदारी आप फील कर सकते हो, उसको सोच सकते हो, उसको देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। आइडिया, सो जो यहाँ पर कैटेगरीज दिखाई गई हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, तो फर्स्ट इज़ अ आइडिया। सो आइडिया इज़ अ थॉट। आइडिया आपके दिमाग में आता है तो दिस इज़ अ थॉट। वी कान टच द आइडियाज़ इन अवर माइंड। तो हम माइंड में जाके आइडिया को टच नहीं कर सकते, बट वी जस्ट रियलाइज एंड अ फील that what we have, what we contain in our mind, that is a idea and that is a thought. Now happiness is just like the feeling. जब आप किसी अच्छे मूड में होते हो तो आप हैप्पी होते हो, तो वो खुशी जो है वो एक फील करते हो, वो खुशी अपने आप में फील करते हो, दैट इज़ अ हैप्पीनेस, एंड वी काउंट दीज टाइप्स ऑफ द फीलिंग इंक्लूड इन आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपके आइडियाज़ भी आते हैं, हैप्पीनेस भी आते हैं, एंड स्टेट बीइंग्स भी आती हैं। तो आइडियाज़ जो अभी मैंने आपको बताया कि किसी के बारे में आपने कुछ सोचा, तो ये जो सोचा है उसको आप छू नहीं सकते हो, उसको आप देख नहीं सकते हो, ये आपके माइंड में लॉक है, इसको आप केवल सोच सकते हो, दिस इज़ योर थॉट। हैप्पीनेस यू जस्ट ओनली कैन फील, है ना, आप उसको फील कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो बाय योर एक्टिविटीज़, बट यू कांट टच, इसको छू नहीं सकते। काइंडनेस, दिस इज़ अ क्वालिटी जो होती है, मतलब किसी के लिए कोई दयालु भाव उमड़ आना, या किसी के लिए कोई कोई दया का भाव आना, तो ये एक क्वालिटी है। ये क्वालिटी है जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बट इसको छू नहीं सकते, इसको मेज़र नहीं कर सकते। लाफर मतलब होता है एक्शन, आपकी प्रतिक्रिया, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है इन फ्रंट ऑफ द पीपल कि आप हंस रहे हो। वी कैन सी वेरी वेल दैट यू आर लाफिंग, बट वी कांट काउंट योर लाफ। हम आपकी हंसी को काउंट नहीं कर सकते और इसको हम केवल देख सकते हैं। वी कांट टच योर लाफ। ब्यूटी, स्टेट ऑफ बीइंग, तो ब्यूटी, अगलीनेस, क्वालिटी, डिसक्वालिटी, ऑनेस्टी, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं ये आपकी एक सडनली फीलिंग्स हैं, हैप्पीनेस हैं, थॉट्स हैं, स्टेट ऑफ बीइंग्स हैं। तो ये सारी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरीज में आती हैं, जो आपका अनकाउंटेबल नाउन भी है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते और जिसको हम मेज़र भी नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन। तो मटीरियल नाउन भी जो है हमारा, वो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन में है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, वो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन में है। लेकिन जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो हमारा काउंटेबल नाउन है। What is an abstract noun? So abstract noun refer to the name of a quality, action or a state. An abstract noun does not belong to the physical object. ये किसी physical object को belong नहीं करता है, ये केवल refer करता है किसी name of a quality कि कौन सी क्वालिटी किसके अंदर है, कौन सा एक्शन, कौन सा रिएक्शन वो कर रहा है, और किस चीज़ का कौन सा स्टेट है, ब्यूटी का है या अगलीनेस का है, दैट इज़। So what is a abstract noun in other words? In other words we can see, जो भी हम देख सकते हैं, we can not see, जो हम नहीं देख सकते हैं। तो अब जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो तो हमें दिख ही रही है, तो
हम उसको आंखों से महसूस कर सकते हैं, दैट इज़ अ गुड, दैट इज़ अ बैड, दैट इज़ अ ब्यूटी, दैट इज़ अ अगलीनेस। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो क्वालिटीज़ इंक्लूड होती हैं उसको हम देख नहीं सकते। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते, जिस चीज़ को हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, उसको टेस्ट मतलब अपने टंग के थ्रू उसको खा नहीं सकते, उसको स्मेल नहीं कर सकते, उसको हेयर नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते। तो ये कैटेगरीज हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट सी, टेस्ट, स्मेल, हेयर or touch it. It means we cannot feel it. It's mean we cannot feel it by our five sense. मतलब हमारे जो 5 organs होते हैं, 5 sense organs, उनकी हेल्प के थ्रू हम इसको फील भी नहीं कर सकते। इट्स मीन वी कैन नॉट फील इट, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, अपने 5 organs को हम यूज़ नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील करने के लिए। मीन्स टंग, आइज, ईयर्स और हैंड्स इन या स्किन, तो ना ही हम टच कर सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ना ही सी कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। तो ये जब हम अपने 5 ऑर्गन्स का यूज़ ही नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहलाएंगे। तो ये बहुत सिंपल डेफिनीशन है कि जिसमें हम अपने 5 ऑर्गन्स के थ्रू जिसको हम रिकॉग्नाइज ना कर पाएँ, या हम उसमें अनेबल हों अपने 5 ऑर्गन्स को यूटिलाइज करने में, रिकॉग्नाइज करने में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। एब्स्ट्रैक्शंस मीन कोई क्वालिटी, कोई स्टेटमेंट, कोई हैप्पीनेस, कोई आइडिया, कोई थॉट, तो ये हमारे सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरीज में आते हैं। इट्स मीन वी कैन नॉट फील इट, मतलब इसको हम फील नहीं कर सकते इट बाय आवर 5 सेंस के थ्रू। थैंक यू।